कोल्ड ड्रिंक को तो मैंने पॉइजन की कैटेगरी में घोषित कर दिया है। ऐसा थॉट में आया था कि मैं कभी 50s 59 देखूंगी स्केल पे। आई नेवर इमेजिन आई विल बी एबल टू डू इट। माई मदर यूज्ड टू से What is happening to you? हर बार आती हो तुम्हारा वेट बढ़ा हुआ दिखता है। The medicines I was having steroids in it. My face puffed up. I had a lot of hair loss and everything. And we stopped that medicines eventually, but वो इफेक्ट तो रह गया बॉडी पे हमेशा के लिए। फिर मुझे बॉडी मेरे सिग्नल्स देने लगी। माई बैक पेन स्टार्टेड, नी पेन स्टार्टेड। 100 मीटर चलने पे भी एकदम ब्रेथलेसनेस होने लगती थी। आई सो अ ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो ऑन योर चैनल ऑफ शुभांगी। You just told me one liner and that one line, you know, struck me very hard कि it changed my life. First month itself, I have lost 5 kg. From a double XL or sometimes even triple XL to a small to extra small of few brands, वो जर्नी लगती है। From not possible to making it possible, वो कैसे हुआ? Wait and watch. Really happy to see you here today. Thank you. Because जर्नी शुरू बहुत लोग करते हैं, हज़ारों लोग करते हैं। इस हॉट सीट पे हर कोई नहीं पहुंच पाता। सो यू हैव मेड इट टिल हियर। कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। हम आपसे आपके 77 kg से 59 kg की पूरी जर्नी आज सुनने वाले हैं, इन डेप्थ सुनने वाले हैं। सो द पर्पस इज टू इंस्पायर मिलियंस ऑफ अदर पीपल। एंड सो बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि फील कैसा होता है? It feels unreal, to be honest. I never imagined I'll be able to do it, to be very honest. मतलब मुझे लगा था I have tried it, कई बार कोशिश करी, बट मुझे लगा था कि यार मतलब नहीं हो सकता प्रियांशी, you cannot do it. अच्छा. But it feels really good. People recognize your effort. They come and ask you क्या किया तुमने, क्या ऐसा. किया, है ना? So it feels really good. If you want to start from कि कहाँ से, चाइल्डहुड से, अपने बारे में थोड़ा सा पहले बताओ लोगों को, ताकि वो आपसे थोड़ा एक्वेंटेड हो जाएं। आप कौन हो, कहाँ से हो, घर पे कौन कौन है? I am basically from Lucknow. Okay. I have a nuclear family, mummy, papa. I'm the only child. Oh, very okay. pampered. जो मांगा सब मिला. My father is really possessive about me. ये मतलब बस बोला और ऐसे हो गया. So very pampered from beginning. पापा की परी? Yes. Nice. So very pampered Yeah. from the beginning. Eventually I was never on the lighter side. थोड़ा healthy थी. Okay. Not chubby, but हमेशा से ही. Okay. The challenge started to come in when I went to college. I had some nervous issues and उसकी meds चल रहे थे. तो I think I was in college. First year, we consulted a doctor and I started वही my लखनऊ में ही medicines. था आपका college? लखनऊ. Okay. नहीं, my college, I did my graduation from Greater Noida. Okay. So आप लखनऊ में, पेरेंट्स लखनऊ में थे, Yes. आप ग्रेटर नोएडा आ गए कॉलेज के लिए. Right. You were So- living in hostel? Yes, I was living in hostel. I was doing my BTech. Okay. तो वहाँ पे वो मेडिसिन स्टार्ट हुए and I used to go home maybe 3 महीने में एक बार. Yeah. So when every time I used to go, my mother used to say, What is happening to you? हर बार आती हो तुम्हारा वेट बढ़ा हुआ दिखता है. अच्छा. क्या खा रही हो? They were like, बाहर का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है. ऐसा क्या कर रही हो? And I was like, and मतलब there came a phase in my life कि मैंने शायद ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट 1 साल तक आई डिडंट वेयर जीन्स या वेस्टर्न वेयर, आई वुड से, Because of weight? बिकॉज ऑफ माई वेट. बिकॉज आई वॉज लाइक, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि यार हो क्या रहा है मेरे साथ. Right. सो आई वॉज ओनली वेयरिंग कुर्ती टू कवर माई सेल्फ अप की बड़े बड़े साइजेस, ताकि वो कवर अप हो जाए. सब. करेक्ट. सो माई मॉम यूज्ड टू से, देन वी अगेन visited the doctor and Yeah. we consulted some other doctor and he said कि the medicines I was having steroids in it and it did nothing, पर उसने मेरी बॉडी को एकदम ऐसे पफ कर दिया. माई फेस puffed up, I had a lot of hair loss and everything and we stopped that medicines eventually, but वो इफेक्ट तो रह गया बॉडी पे हमेशा के लिए. कितने टाइम के लिए आपने वो मेडिसिन लिए I थे? think I consumed it for a year. For a year. Almost, yes. So medicines तो बंद कर दी, but वो असर रह गया. And then life happens. आप कॉलेज में रहते हो, बाहर का खाना पीना. Yeah. After marriage, I shifted to Bangalore in 2018.
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, ध्यान थोड़ा सा होता है कि ठीक है ईज ऑफ एक्सेस रख लेते हैं, जोमेटो कर लिया, स्विगी कर लिया. आप और आपके हस्बैंड लाइक यू टू लिव टुगेदर या फैमिली साथ में? So my in-laws are in Lucknow only. Me, my husband and my brother-in-law, we live together there. Okay. So he likes to eat a lot of things. He loves Chinese. He can every meal like he can have egg fried rice. It's his staple. Matlab like we don't get bored yaar. Nahi. So he is a big time foodie. So with him matlab and I love to cook. Okay. He loves to eat. You love to cook. So I think वो एक pair जो made in heaven. So अब से ये हुआ कि मतलब I used to cook all the things which he liked. तो मुझे ऐसा था कि यार घर पे बना लेते हैं. Still a little bit on a healthier side मेरे perspective से वो रहता था कि चलो ठीक है पैसे भी बच जाएंगे, घर पे बन जाएगा. कुछ भी बन रहा है, मंचूरियन बन रहा है, पकौड़े बन रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज लाओ, अच्छा आज फ्रेंच फ्राइज and all this packaged food which has come उसने हमारी लाइफ को और इजी करने के लिए और अनहेल्दी की तरफ हम पुश होते गए हैं. अनहेल्दी विद कन्वीनियंस. यस है ना, राइट. कि पैकेट खोला, डाला, फ्राई किया, निकाला, कंज्यूम कर लिया. तो विद हिम मतलब उनके साथ रहते रहते वाज लाइक कि मुझे भी अच्छा ठीक है, लाओ ठीक है यार एक दिन खा लेती हूँ, एक दिन खा लेती हूँ. वो करते Are we talking about those ready to Meccans and all these things? Didn't want to take the name but so obviously तो वो सारी चीज़ें थी. तो it's like कि बर्गर खाना है ठीक है, निकाला फ्राई करा, पैटी फ्राई करा. इट्स सो इजी, इट्स सो इजी एंड कन्वीनियंट. तो टाइम बच रहा है आपका. एंड नॉट अ हसल लाइफ कि आपको एंड कंसिडरिंग ट्रैफिक ऑफ बैंगलोर व्हिच इज वेरी फेमस, आपको बाय मतलब स्टिल टुडे आल्सो मतलब इफ आई हैव टू रीच ऑफिस बाय 10:30 10:45 आई लीव माय हाउस एट 8:45. अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू रीच. तो वो 8:45 पे निकलना है, आपको मेड को भी कोऑर्डिनेट करना है, आपको ब्रेकफास्ट भी कोऑर्डिनेट करना है, आपको लंच भी कोऑर्डिनेट करना है. ठीक है यार बाहर ही खा लेंगे. तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं हो पाता. मतलब अगर आपको 8:30 पौने 9 तक ऑफिस के लिए निकलना है और सब कुछ करना है, लाइक ऑल दोस चोर्स दैट यू आर टेलिंग मी, इट्स लाइक नॉट पॉसिबल कि आप अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर सारी चीज़ों को एकदम परफेक्ट रखो. बट नाउ यू आर डूइंग इट, सो विल कवर दिस जर्नी कि फ्रॉम नॉट पॉसिबल टू मेकिंग इट पॉसिबल. वो कैसे हुआ, वेट एंड वॉच. आफ्टर सम टाइम मे बी आई वुड से मे बी 2 years बैक आई वुड से कि मुझे चलने में प्रॉब्लम होने लग गई. So I was not even able to walk 100 meters. And मुझे ये जो टिप होता है ना ये पैर का, I felt a lot of pain there. तो मुझे ऐसा लगा एंकल में okay. तो people said कि मे बी कुछ कभी अगर यूरिक एसिड आपके बॉडी में बढ़ जाता है तो उसकी वजह से एंकल पेन होता है. तो वी कंसल्टेड अ डॉक्टर, ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ, उसमें कुछ निकल के यूरिक एसिड में नहीं आया. Then one doctor told me कि I think maybe it's your weight कि your feet is giving up on taking up your weight maybe when you are walking. तो I was like कि मतलब फिर शायद मैं वो जो 100 मीटर भी चलती थी ना, मैंने वो भी कतराना शुरू कर दी. वो mentally हो गया ना कि नहीं यार पैर में दर्द हो रहा है. People, my colleagues used to go out for tea, so I was like नहीं बाहर नहीं जाऊंगी, अंदर कैंपस में ही पी लेते हैं. क्यों, पैर दर्द हो रहा है यार, मैं नहीं चल पाऊंगी उतनी देर. देन मतलब मैं डिनायल जोन में थी. देन केम अ फेज व्हेन आई थॉट कि आई थिंक मेरे फुटवेयर में प्रॉब्लम है. मैं कंफर्टेबल फुटवेयर्स नहीं पहन रही हूँ, मेरे फुटवेयर्स के सोल में प्रॉब्लम है. मे बी दैट इज़ द रीज़न कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है. आई स्विच टू मल्टीपल ब्रांड्स, कंफर्टेबल वो डॉक्टर सोल्स जो आते हैं. थोड़ा आराम मिला बट स्टिल वो परसिस्टेंट रहा. आफ्टर दैट मतलब केम अ पॉइंट कि फिर मुझे बॉडी मेरे सिग्नल्स देने लगी. आफ्टर माई एंकल पेन, माई बैक पेन स्टार्टेड, knee pain started. I have sinus issues, so breathing problems मुझे वैसे भी हैं. But when I used to walk, मैं 100 मीटर चलने पे भी एकदम ब्रेथलेसनेस होने लगती थी. I was not able to walk a lot. तो धीरे धीरे then I realized कि मतलब कुछ तो अब गड़बड़ हो रहा है धीरे धीरे करके. एंड आफ्टर दैट
I tried a lot of things बीच में इधर उधर करते करते, but that was the time कि मुझे, then one thing strike me, it's been 5 years I have been married now, and that time I thought कि यार I have to start a family, and when I'll conceive, maybe in the future when I'll be pregnant, I'm at the point I'm 77, I'll put on bare minimum 10 to 12 kgs of weight during that time of my life, and कहाँ चली जाओगी प्रियांशी, एंड हाउ विल यू कम बैक फ्रॉम देयर. सो आई थिंक दैट वाज द थिंग विच ट्रिगर्ड मी कि नो, आई हैव टू प्रेप अप माई सेल्फ मे बी फॉर द फ्यूचर, एंड अब नहीं हो रहा है. मतलब वो बॉडी सिग्नल्स जब देने लगती है ना, तो फिर वो हो जाता है. अब लगता है कि नहीं, अब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत है. एंड और एक सिग्नल नहीं, लाइक यू गॉट मल्टीपल सिग्नल्स. पहले पैर में दर्द से स्टार्ट हुआ, बैक एक हुआ, उसके बाद और भी, मतलब ये सारे जब सिम्टम्स होते हैं, कुछ और भी था जैसे हेयर फॉल या स्किन या इस तरह की कोई चीज़? हेयर फॉल तो नहीं एज सच, बट हाँ, आई बाय नेचर आई एम अ वेरी लो इम्यून पर्सन. मेरी इम्यूनिटी, मुझे ऐसे चुटकियों में मैं बीमार पड़ जाती हूँ. सो वो भी बीमार भी होना, मतलब इम्यूनिटी लो हो गई थी. कुछ भी हो रहा था तो हर महीने में 2 दिन 4 दिन आई वॉज सिक. तो वो सारी चीज़ें मतलब धीरे धीरे करके स्टिल मैं रजिस्टर नहीं कर पा रही थी कि मतलब व्हाट इज़ ऑफ, मैंने ऐसा कुछ चेंज तो किया नहीं है, अचानक से ऐसा क्या हो गया. सो दैट वाज अ थिंग कि दैट वाज अ टाइम, मतलब मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा. सो ये सारे सिग्नल से रियलाइज हुआ कि अभी ये हाई टाइम. एंड प्लस एज यू सेड कि जब आपने फ्यूचर के बारे में भी सोचा, जब कंसीव करेंगे तो वो सारे फियर्स एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक राइट टाइम, आपने शादी के बाद 1-2 साल एंजॉय भी कर लिया, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे व्हेन द टाइम केम, हाउएवर सूनर द बेटर, बट स्टिल इट वाज नॉट टू लेट. यस, ठीक है. देन हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी विद आई एम वाओ? उससे पहले भी कुछ किया आपने या फिर? उससे पहले मैंने ऐसे कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम नहीं लिया. यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, बहुत नॉलेज है, आप कैसे कंज्यूम कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कितनी लेजिट है, नहीं है, यू डोंट नो. बट जब इंसान को कुछ नहीं मिलता है तो वो सबसे पहले सबसे इजी ऑप्शन की तरफ भागता है कि अच्छा ठीक है, लेट मी सी क्या कर सकते हैं. तो आई ट्राइड वो कीटो एंड ऑल, उस समय पे काफ़ी डाइट्स एंड ऑल ट्रेंड में था. तो आई ट्राइड, मतलब पर वो कंसिस्टेंसी कभी नहीं रही, क्योंकि वो वाला पार्ट था ना कि अच्छा ठीक है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं. सो आई ट्राइड फॉर मे बी 1 वीक 10 days, उससे ज़्यादा मैंने कभी ट्राई ही नहीं करा. कोई मोटिवेशन नहीं आती, और कोई मोटिवेशन नहीं. ये भी रीज़न है कि कोई गाइडेंस, मतलब ऐसे नहीं है कि हाँ दिस इज फॉर यू. उसमें भी 10 चीज़ें थी, किसी ने 10 चीज़ें बोल दी कि ये 10 चीज़ें खा सकते हो, उस 10 में से 4 चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ, आई डोंट लाइक इट. तो फिर वो बची 6 कितनी खा लूँ. तो दैट वाज वन थिंग. आफ्टर दैट आई came across you through your transformation video. Okay. That was the first video I saw of yours. So वहाँ से वो journey आपको follow करने की start हुई. I have been following you for around 3 years now. अच्छा. 1 साल बहुत procrastinate किया कि कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. The diet charts which you used to give for a week करके कोशिश करी, उसको भी try करने की, consistency नहीं थी. Then after some time, I just opened your YouTube channel, normal surfing. I was like, चलो देखते हैं कुछ नया आया है क्या. So I saw a transformation video on your channel of Shubhangi. Yeah, Shubhangi. She is my college friend. Acha. Yeah, so we were in same college. Nice. We were in different streams, but we were together in a theater group. So we were very closely knitted during college times. So I saw her video. Nice. So I was like, ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ. Because I have seen her. She मतलब from the college days, she was more on the chubbier side. So I have seen her from that time. Shubhangi is a very dear client. In fact, मुझे उसे क्लाइंट बोलने में अजीब लगता है, बिकॉज शी इज़ लाइक, आई रियली अडोर हर अ लॉट, बिकॉज उनके साथ भी, शुभांगी के साथ भी हमने ऐसे इंटरव्यू किया था. करेक्ट. और वेरी स्वीट, very sweet person. She is. So then I watched her video, and then I texted her. Then I reached out to her. मैंने कहा यार, I have just seen your video, and how was your journey? कैसा रहा तुम्हारा experience? क्योंकि
There are a lot of things in the market right now, but I don't know if it will work for me or not. So that was the reason I reached out, and the major reason I reached out to her was because I knew she was working. So I reached out to her to understand how did you manage with a proper job. And she was also married. Yes, she was also married. So she just told me one thing. I had a very good experience. And then when I asked her, she just told me one liner. And that one line, struck me very hard. Ki, Prachi, tum karna chahogi, to kar logi. Yeah. That was one line. I still remember that was the one line she told to me. And I was like, I have a very funny story I don't know, it would sound silly, but I used to color my hair once in a year. Color your hair? Yes. Okay, तो एक साल में मैं बाल अपने कलर कराती थी. कुछ 4,000-5,000 रुपए मेरे जाते थे. एंड वो टाइम मेरा वही दिसंबर जनवरी के टाइम पे मैं करती थी. सो आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ दैट कि ठीक है. Then when I came to that, then I said कि यार शुभांगी से बात करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सोचा. फिर मुझे लगा कि क्यों ना इन पैसों को किसी बेटर चीज़ में यूटिलाइज करके एक बार ट्राई करके तो देखती हूँ. वो तो मैं कभी भी करा सकती हूँ. एक बार कोशिश करके देखती हूँ. ठीक है, एक बार और करके देखते हैं, क्या पता. एंड आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड कि अगर प्रियांशु तुम इस बार नहीं कर पाई, then it's a give up. You'll not be able to do it. So that journey started from there. From January, I just फिर मैंने सोचा नहीं, क्योंकि आप सोचोगे तो फिर कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आएगा. एनालिसिस पैरालिसिस होना शुरू हो जाएगा. And as I said कि I was like पहले मैं 1 महीना ट्राई करके देखूंगी. हो पाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर अब गिव अप है. तो firstly I enrolled for 1 month. Aditi was my coach. And we started off, it changed my life. The first month itself? The first month itself changed my life, because in the first month itself, I have lost 5 kgs. Wow. In 1 month only. So, as I said, कि lot of people ask me कि वो क्या motivation रहा तुम्हें continue करने का? Because after first month, then I again enrolled for another 2 months to complete a 3-month का plan. तो they were like कि क्या motivation था. मैंने कहा यार वो जब आप and I could see the results after 10 days. छोटे छोटे धीरे धीरे, but I can see the and जब when Aditi told me कि आप अपने measurements update करो and all, and जब मैंने वो measurements लिए, like shit ये तो बहुत ज़्यादा है. सो एंड देन वो जब हर वीक वो एक मोटिवेशन रहता था ना, अच्छा देखते हैं हर वीक अपडेट करना है, कितना कम हुआ. एंड व्हेन यू इवेंचुअली सी कि हाँ यार, मतलब यू कैन एक्चुअली सी दोस चेंजेस. यू लुक फॉरवर्ड टू दैट डे. करेक्ट. कि अभी वो इम्तिहान की घड़ी आ गई है. तो वो मोटिवेशन जो रहता था ना कि यार हर हफ्ते में अब आज तो पता चल जाएगा क्या हुआ एक हफ्ते में, क्योंकि वेट इज व्हाट आप हर दिन देख रहे हो. इट्स गुड 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम्स यू आर शेडिंग, लेकिन वो इंचेस का जो डिफरेंस है. एंड आई इन माई लाइफ बिफोर दिस मैंने कभी वो इंचेस वाला जो लोग बोलते हैं ना कि मेनी पीपल आर नॉट एबल टू लूज द वेट, हो सकता है वेट में डिफरेंस ना दिखे लेकिन इंचेस लूज होते हैं. तो वो मुझे कभी समझ में नहीं आता था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि वेट नहीं कम हो रहा है लेकिन इंचेस लूज हो रहे हैं. पर वो जो जर्नी थी ना, मतलब इन द फर्स्ट वीक काफ़ी चेंजेस दिखे. एंड वो फर्स्ट 15 डेज में when you see कि यार वो ग्रेजुअली स्केल कम होता चला जा रहा है, धीरे 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 करके इंचेस लूज हो रहे हैं, यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ. तो वो मोटिवेशन फिर रहा कि अच्छा इतना कर लिया, ठीक है थोड़ा सा और पुश करके देखते हैं, थोड़ा और पुश करके देखते हैं. आई नेवर इमेजिन्ड टू लूज दिस मच अमाउंट ऑफ वेट, to be very honest, but हो गया. मतलब I would say it was, I never felt कि I was under a program या I was under a diet. वो experience was super for me. In fact मैंने अदिति से कई बार ऐसे बोला भी, मैंने कहा इतना तो मैं खा ही नहीं पाऊंगी जितना आप मेरे को दे रहे हो. दिन में 4 मील छोटे छोटे करके, इवनिंग स्नैक्स, मॉर्निंग स्नैक्स, मैंने कहा मैं खा ही नहीं पाऊंगी यार, ये बहुत ज़्यादा है मेरे खाने के हिसाब से ही. सो आई नेवर फेल्ट. I started off
Aditi was very supportive and वो जो एक रेगुलर कनेक्ट होता है ना हर वीक में, तो फिर आपको पता रहता है कि हाँ यार कोई है पीछे से जो अभी तुम नहीं करोगे तो फिर 4 सवाल आएंगे कि क्यों, क्या हो गया ऐसा, तो जिसको तुम्हें रिपोर्ट करना है, राइट, कि वो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तुमने कुछ तो गड़बड़ करा इसका मतलब है। तो दैट मोटिवेशन प्लस जैसे मैंने बोला कि मुझे खाने में कभी कुछ ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं डाइट पे थी, क्योंकि इट वाज ऑल घर का बना हुआ सिंपल खाना जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में खाते हैं। एंड वन थिंग जो मैंने जिसने मुझे बहुत हेल्प करा एंड आई स्टिल कंटिन्यू इट इन माई डाइट इज पोर्शन कंट्रोल। आज उस टाइम से पहले तक मुझे कभी समझ में नहीं आया था, बट मैं लंच में जैसे मैंने बोला कि 2 रोटी वॉज माई डाइट। भूख लगी तो कभी 3 रोटी भी खा ली, 4 रोटी भी खा ली, बट जब मैं उस डाइट में 1 रोटी एंड विद द करेक्ट अमाउंट ऑफ वेजीज, दाल, सैलेड एंड मेरा पेट भर जाता था, तो तब मुझे लगा कि यार मतलब दैट वॉज एन अननेसेसरी इनटेक जो मैं कर रही थी। शायद पेट भर जा रहा था पर दिमाग नहीं भर रहा था कि अच्छा बहुत अच्छी सब्जी लग रही है, अच्छा 1 रोटी और खा लेते हैं, 1 पराठा और खा लेते हैं। तो दैट इज द थिंग कि वो आता है भाई जब 1 रोटी पे भी, क्योंकि उससे पहले जो छोटे छोटे मील्स आप ले रहे हो उससे भी आप फुल रह रहे हो, तो वो 1 रोटी से भी पेट भर जाता था। देन आई रियलाइज कि मतलब मैं बहुत ज्यादा खा रही थी, इतने खाने की मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है एट द पॉइंट। हमें समझ नहीं आता वेयर टू स्टॉप, अदरवाइज पता नहीं होता कितना सही है हमारे लिए। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसकी वजह से हम ओवर ईट कर जाते हैं, वो ये है कि हम पूरा फोकस ही कार्ब्स पे देते हैं। हम अपनी प्लेट को बैलेंस ही नहीं करते हैं। सो व्हेन वी बैलेंस आवर प्लेट, लाइक हमें जब पता हो कि हम अपने मेन कोर्स से पहले सैलेड खाना भी ज़रूरी है, या फिर मेन कोर्स के साथ हमें कुछ कुछ अगर हम दही ले रहे हैं या बटर मिल्क ले रहे हैं, उससे भी हमारा एपेटाइट या उससे भी हमारा पेट भरेगा। और हम साथ में अगर एक दाल का बोल ले लेंगे या फिर एक सब्जी ले लेंगे, सॉटे वेजिटेबल्स लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कार्ब है वो कम हो जाएगा उसका। राइट, एंड आई एम अ वेरी चूजी पर्सन व्हेन इट कम्स टू फूड। ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी, ये नहीं खाना है, ये नहीं पसंद है, तो आई डोंट नो हाउ Aditi tackled with me but and as I said कि आई एम एन एगिटेरियन, सो आपके पास वैसे भी ऑप्शंस प्रोटीन के लिए भी बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। तो मतलब आई टोल्ड हर, मतलब उसने पूछा कि क्या नहीं खाओगे, एंड आई गेव हर दिस लॉन्ग लिस्ट। ओके ठीक है, मतलब मैं कर्ड नहीं खाती। अच्छा। मैं कर्ड से रिलेटेड या बटर मिल्क ऐसी चीजों से रिलेटेड कोई भी चीज हो, you have an intolerance? नहीं, nothing. अच्छा, you don't like it? I don't have a palate for it. या मतलब होता है ना, वो कभी कोशिश ही नहीं करी, तो अब वो टेस्ट ही नहीं डेवलप हो पाया। मैं साग नहीं खाती। अच्छा। आई कैन हैव इट इन अ, मतलब कि आपने आटे में गूंद के पालक की पराठे या रोटी ऐसे बना दिया तो आई कैन, प्रॉपर ऐसे साग नहीं खा सकती मैं। मैं प्रोटीन के नाम पे सोय इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बिकॉज वो थोड़ा मीटी टेक्सचर देता है। So you don't like तो that आई डोंट लाइक दैट चूई टेक्सचर। तो आई डोंट नो हाउ शी डेल्ट विद मी, बट एक्चुअली आई एम सरप्राइज्ड। हाँ, बट स्टिल मतलब मैं मशरूम नहीं खाती। सो बट स्टिल मतलब आफ्टर सो मच कंस्ट्रेंट्स की मतलब मैं ये नहीं खाती, ये नहीं खाती, ये नहीं, ऑब्वियसली आई एडजस्टेड एट फ्यू प्लेसेस, लेकिन कि बट स्टिल माई डाइट वॉज सो मच बैलेंस्ड कि वो माइंडफुलनेस जब आने लगता है ना कि यार इतना काफ़ी है, पेट भर जा रहा है आपका इतना खाना खाने के बाद भी, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिससे आप चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हो कि अब जैसे अगर मुझे बहुत चीज़ें नहीं पसंद थी तो आई लाइक पनीर, तो मैंने मोर और लेस एग खाती थी, तो मैंने मोर और लेस पनीर एग के साथ दाल के साथ, जैसे मैंने कहा कि राजमा वगैरह बहुत पसंद था, थोड़ा सोर्स ऑफ उसमें प्रोटीन है, तो उससे आई मैनेज्ड मतलब वो चीज़ें। एंड अदिति kicked it off very well with me, and the best part is कि मुझसे हर हफ्ते पूछा जाता था क्या खाने का मन है। अच्छा। तो कभी मुझे वो क्रेविंग्स भी नहीं फील हुई, कभी मुझे वो क्रेविंग्स लगती भी थी, तो मैंने अदिति को बोला यार इस बार मन कर रहा है आलू का पराठा खा लूँ, तो आलू मत खाओ, पनीर से रिप्लेस कर लो, एंड हैव सम लिटिल बिट ऑफ घी ऑन इट रादर दैन यूजिंग ऑयल।
तो कुछ चीज़ें विच आई टोटली अवॉइडेड. आई लव्ड पोटैटो. मेरी कोई भी सब्जी आलू के बिना पूरी नहीं हो सकती थी आज से पहले. तो बट फॉर 3 months straight I didn't had potato at all. Okay. I quit sugar until date, and these things are जो मैं आज के डेट में भी कंटिन्यू कर रही हूँ कि I थोड़ा लिमिट में. हाँ, I'm a very चाय बहुत पसंद है मुझे. एंड व्हेन अदिति टोल्ड मी, मैंने कहा बॉस चाय नहीं छोड़ पाऊंगी. दिन में 1 कप चाय सुबह में तो चाहिए मुझे. एंड मेरे लिए चाय का फिर मतलब है कि मुझे वो प्रॉपर मिल्क टी ही चाहिए, भले ही मैं हाफ कप लूँ, बट दैट आई नीड टू स्टार्ट माई डे. तो शी सेड कि ठीक है, देन स्टार्ट विद जागरी. एंड वहाँ से वो जो जागरी वाली भी जर्नी शुरू हुई मेरी. टिल डेट आई अवॉइड शुगर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट आई कैन. मैं मेरे घर में अब चीनी बहुत आती है, वो शायद महीने 2 महीने 3 महीने भी 1 kg चीनी चल जाती है, क्योंकि अब कोई आया कोई नहीं आया, एवरीवन डोंट हैव द पैलेट यू हैव. बट मेरी चाय डेली जागरी में ही सुबह बनती है. एंड इवन इफ आई इंडल्ज, एंड आई एम श्योर दैट नाउ यू मस्ट हैव डेवलप्ड दैट टेस्ट आल्सो. हाँ, तो बट वो जो एक माइंडफुलनेस आया ना आफ्टर प्रोग्राम, फर्स्ट मंथ में मैंने 5 kgs लूज करा. नेक्स्ट 2 months अनदर 10 kgs इवेंचुअली लूज हुए धीरे धीरे करके. तो वो एक जर्नी जो रही वहाँ तक की वॉज मतलब समथिंग विच आई नेवर इमेजिन्ड आई कैन पुल इट ऑफ. वो डाइट भी जो रहा, कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कुछ रेस्ट्रिक्शन है. एंड आफ्टर सम टाइम वो एक खुद में आ जाता है कि अब ये नहीं खाना है, दिस इज नॉट गुड, या ऐसा नहीं है. एवरी सिंगल डे इट्स माई रूटीन. आई गेट अप, आई फ्रेशन अप, पानी पीने से भी पहले आई स्टैंड ऑन माई वेइंग स्केल. मैं हर दिन, और जहाँ वो मुझे पता तो चल जाता है कि आप मतलब वीकेंड आया, आपने कंज्यूम कर लिया है, तो पता है कि मंडे वो स्केल हिलेगा. और वो हिल जाता है. तो बट वो जो वो 1 kg 1.5 kg ऊपर होता है ना, तो वो रेड अलर्ट दिमाग में शुरू, नहीं वापस आओ कंट्रोल. तो मैं तो यही बोलती हूँ कि मतलब मेरा मंडे टू फ्राइडे जो मैंने वीकेंड पे इंडल्ज किया होता है उसको रेफ्रेन करने में जाता है कि नहीं, पूरा मंडे टू फ्राइडे मैं खुद को रेफ्रेन करती हूँ. वीकेंड ऑब्वियसली आप थोड़ा सा इंडल्ज कर लेते हो, बट दिस इज हाउ यू शुड मैनेज. आप अपने आप को बहुत समय तक किसी चीज़ से रेफ्रेन करके नहीं रख सकते हो. मतलब दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि अगर आप किसी चीज़ से आपको बहुत मन कर रहा है खाने का और आप नहीं करते रहोगे ना, तो आप इवेंचुअली शायद गिव अप कर दोगे और आप ओवर ईट कर लोगे उस चीज़ को. अगर आपका बहुत मन कर रहा है तो आप, जैसे मुझे डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है, तो अदिति टोल्ड मी कि ठीक है, अगर कभी आपका मन करे खाने का तो यू कैन हैव अ स्मॉल बाइट ऑफ डार्क चॉकलेट. तो अब वो मेरी रेगुलर चॉकलेट्स हमेशा के लिए डार्क चॉकलेट से मतलब रिप्लेस हो चुकी है. अब मेरे घर में ऑल द टाइम चॉकलेट्स रहती हैं, लेकिन हमेशा डार्क चॉकलेट. इवन आई एम कैरिंग अ डार्क चॉकलेट इन माई बैग एज वेल राइट नाउ कि मुझे अगर को स्वीट क्रेविंग कभी हुई तो ठीक है, मुझे पता है कि थोड़े से पोर्शन में वो मुंह में मिठास आ गई, तो मेरा काम वो जो दिमाग में चल रहा है ना कि कुछ मीठा चाहिए, वो कवर हो जाएगा. तो जो मतलब रिप्लेसमेंट्स हैं, एज यू सेड, हम कभी उस डायरेक्शन में सोचते नहीं है. रिप्लेसमेंट्स, सॉल्यूशंस, हर चीज़ के ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट होते हैं. yes. और वो दिमाग अपने आप चलता है. सो फिजिकल एक्टिविटीज़ में मैंने होम एक्सरसाइजेस के लिए ऑप्ट करा था. अच्छा. रादर देन गोइंग टू जिम, बिकॉज विद द एज आई सेड आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन. एक्सक्यूजेज हैं, आई अंडरस्टैंड कि आप नहीं उठ सकते हो, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, बट देन आई सेड कि ठीक है, आई टेक अप फॉर द होम एक्सरसाइजेस. व्हिच इज व्हाई आई एम वाओ में, मतलब जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन्हें भी बता देती हूँ, यू गेट बोथ द ऑप्शंस. यू गेट जिम वर्कआउट, अगर आपको जिम जा सकते हो तो, अगर आप नहीं जा सकते तो होम वर्कआउट. इनफैक्ट देयर इज अ थर्ड ऑप्शन ऑल्सो फॉर एल्डर पीपल जो वर्कआउट कर ही नहीं सकते, तो उनके लिए भी थर्ड ऑप्शन भी रहता है. लाइक वी सजेस्ट देम कि कितना वॉक करना है या किस तरह की कुछ स्ट्रेचिंग या योगा वो क्या कर सकते हैं. सो या यू chose to go with the home workout. I chose the home workout and different kind of exercises होती थी जहाँ पे मैं physically मतलब वो half an hour बहुत honestly मैं बहुत ज़्यादा
तो नहीं टाइम दे पाती थी उसको. बट हाँ मतलब आई ट्राइड कि मैं हाफ एन आवर 40 minutes 45 minutes आई एम गिविंग. बट वन थिंग विच आई केप्ट कंसिस्टेंट ड्यूरिंग दैट टाइम वॉज आई मेड श्योर आई एम वॉकिंग 10,000 steps every day. Okay. So for those months I only used to wear smartwatch जो मेरे steps count करता था. And even in office मतलब वो था कि यार मतलब 10,000 steps तो होने. अगर मेरे को कभी रात में आके होता था कि 7,000 नहीं हुए 8,000 नहीं हुए, आज थोड़ा ऑफिस में लेथार्जिक हो गया, तो मैं वापस नीचे जाके वो कंप्लीट करती थी सोसाइटी में. Was it like again वो जिद वाली चीज? हाँ कि वो 10,000 steps मतलब उससे क्या होता था ना कि इवन एंड वो जब जैसे मैंने आपको बोला कि मैं 100 मीटर भी नहीं चल पाती थी. एंड जब आपको ये लगने लगा कि यार अब तो मतलब 1 किलोमीटर भी कोई ऐसे बोलने को चल दे पैदल कि यार ठीक है यार पैदल चल लेते हैं, तो वो जो आपको फील होता है ना कि यार मतलब व्हेन यू आर नॉट इवन एबल टू वॉक 100 meters और अब आप 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर भी चल सकते हो इजीली, दैट्स द जर्नी. वाओ. तो वो एक मोटिवेशन होता था कि यार मतलब ठीक है ना, अब तो मैं चल ले रही हूँ, मतलब 7,000 steps चल ले रहे हो तुमने, दिन भर में 7,000 स्टेप कर लिए, 3,000 तो और हैं, चलो खत्म कर लेते हैं. वो धीरे धीरे आपके लिमिट्स पुश होती हैं. राइट. तो दैट वाज वन थिंग कि मतलब अगर कभी मेरे एक्सरसाइज में थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाता था, या मैं घर जाती थी या मैं वेकेशन पे गई हुई हूँ, तो मैं ऑब्वियसली अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ तो आई जस्ट मेक श्योर कि मैं एक्टिव हूँ, मैं जितना चल सकती हूँ उतना चलूं. और वो अपना एक जो बेंचमार्क है 10,000 स्टेप्स वाला उसको मीट करूं. मैं ऑफिस में मैंने आई सिट एट 6th floor. तो अब 6 फ्लोर तो एक बार में शायद नहीं हो पाएगा तुरंत में ही, तो मैं अगर चढ़ती नहीं थी तो मैं उतरती थी कि अगर मुझे चढ़ने में लगेगा कि इट्स मोर हेक्टिक फॉर मी, तो ठीक है एटलीस्ट आई कैन गो डाउन through stairs. I'll not take lift, I'll go down through stairs. तो इस तरह से I used to manage. Right. इसका भी मैं एक और ट्रिक देती हूँ. मैंने किसी से सुना था, so one of my friends used to follow this thing. मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल 6th floor पे है आपका ऑफिस, तो 6 फ्लोर नहीं चढ़ सकते हो, 2 फ्लोर चढ़ जाओ. या सो व्हाट यूज्ड टू डू कि 2 फ्लोर चढ़ लिए, जहाँ पे थकेंगे वहाँ लिफ्ट ले लेंगे. और फिर क्या होता है ना, आप धीरे धीरे अपने आप को पुश करते हो कि नहीं चल 1 फ्लोर और है ना, करते करते आप कब 6 फ्लोर भी भागकर चढ़ना शुरू कर दो, you never know. So ठीक है, बट आई थिंक दैट्स ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग कि चढ़ना नहीं है तो उतर सकते हो, उतरना तो इट्स इजियर. राइट. मतलब आपको उतना एफर्ट नहीं लग रहा है उतरने में. पर हम जो इतने इक्विप्ड हो गए हैं कन्वीनियंस पे कि अरे ठीक है 2 मिनट वेट कर लेते हैं, लिफ्ट आई तो रही है, तो वो 2 मिनट वेट. इनफैक्ट प्रियांशी कई ऑफिसेज में तो हम लोग 15-15 मिनट लिफ्ट की वेट कर लेते हैं, बट साथ में सीढ़ियाँ होती हैं उसे यूज नहीं करते हैं. वर्कआउट क्या करते थे होम वर्कआउट में? होम वर्कआउट में आपके थोड़े जंपिंग जैक्स हो गए, थोड़ा सा पुशअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए. एज आई सेड कि मतलब कुछ बॉडी पार्ट्स थे, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स थे जिन पे मैं वर्कआउट करना चाहती थी, तो इस तरह की एक्सरसाइजेज हो गई. मैं स्किपिंग कर लेती थी थोड़ा सा इनिशियली, एज आई सेड कि ब्रेथलेसनेस होती थी, बट धीरे धीरे करके थोड़ा सा आप स्किपिंग, कुछ नहीं मतलब अगर मुझे लगा कि आज कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ तो चलो थोड़ा सा स्किपिंग ही कर लेते हैं. तो इट्स अ चॉइस. सो आपने सारी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करी या फिर मैक्सिमम स्किपिंग करी? सो कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत होम एक्सरसाइजेस, राइट. इक्विपमेंट्स ऐसा कुछ नहीं, कुछ थोड़े बहुत डम्बल्स बहुत हल्के फुल्के आपने अगर कर लिए तो कर लिए, बट इट वॉज प्योर एक्सरसाइज, मतलब प्योर होम एक्सरसाइजेस जो आप बहुत ईजिली, अगर आप 20-25 मिनट आधा घंटा भी डिवोट करोगे तो आप बहुत ईजिली अपने घर के किसी हिस्से में कर सकते हो. यू डोंट नीड अ पर्टिकुलर स्पेस या पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स उसको करने के लिए. सो मीन्स सिंपल होम एक्सरसाइजेस, वॉक या थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस आई वुड से, देन सिंपल घर की डाइट, पानी का इंटेक, इन्हीं सब चीज़ों से आपने 15 किलो वेट लूज तो किया ही किया, साथ में मेरे को जो 15 किलो से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो ज़्यादा भारी वेटेज जो मुझे जिस चीज़ की लगी ना, मुझे आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी टू लिसन टू द फैक्ट दैट 100 मीटर ना चल पाना एंड देन 10,000 स्टेप्स पूरे कर लेना. आई थिंक सैल्यूट टू यू प्रियांशी, सीरियसली इट टेक्स अ लॉट. ये एक बहुत लंबी जर्नी है, ये एक बहुत लंबी जर्नी है, और जिसने कवर किया ना सिर्फ वही समझ सकता है. इट्स एन इमोशनल जर्नी एज वेल कि आप नहीं चल पा रहे हो, बैक पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे वर्सेस नाउ यू आर इंस्पायरिंग सो मेनी अदर पीपल. आई मीन दिस इज अमेजिंग, बियॉन्ड अमेजिंग, सीरियसली. एंड मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड टू मी ऑल्सो. डेफिनेटली मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ इस चीज़ के लिए
कि आपने ये किया, सक्सेसफुली किया? So and it wouldn't have been possible, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करी पहले, लेकिन वो एक राइट गाइडेंस जब आपको मिलता है, आपके मन में वो डर रहता है कि किसी को जवाब देना है आपको अगले हफ्ते कि क्या किया भाई तुमने ऐसा कि कुछ नहीं हुआ। तो वो एक जब यू नो कि देयर इज समवन बैकिंग यू अप, कि देयर इज समवन जिस मतलब कोई और भी है जिसके एफर्ट्स वहाँ पे लग रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज द थिंग। एंड वो फीलिंग एक अंदर से वो एक आना ना, वो एक टाइम क्लिक करना कि नहीं यार अब बहुत हो गया, मतलब अब तो कुछ करना पड़ेगा। But the credit goes to you कि इस चीज़ को इतना सीरियसली लिया आपने, क्योंकि देखो सी अल्टीमेटली आपने एक प्रोग्राम ज्वाइन करा है, आपने पैसे दिए हैं। ऐसे में कई लोग समझते हैं यार मैंने कर दिया, मतलब मैंने अपने एफर्ट्स डाल दिए, अब नहीं हो रहा है मेरे से, यू नो। बट उस चीज़ को उतना ही सीरियसली लेना, अपने कोच की बात को सीरियसली सुनना, वो वीकली कॉल्स को सीरियसली लेना, दैट आई हैव टू शो अप, आई हैव टू गिव माई स्टैट्स, आई हैव टू टेल हर, अपडेट हर कि मेरा क्या इंचेस आए, मुझे दिखाना है मेरी वेस्ट पिछली बार इतनी थी, इस बार इतनी। इन चीज़ों को, इन मैट्रिक्स को, इस प्रोग्रेस को सीरियसली लेने से ही रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड वन मोर थिंग विच ऑल्सो मोटिवेटेड मी कि लाइक आई सेड कि अब मैं कुछ वैसे कपड़े भी पहनने लग गई हूँ जो मैं पहले कॉन्शियस होती थी पहनने में। स्टिल आई थिंक अभी कुछ समय तक मैं हूँ कॉन्शियस स्टिल कि मैं अभी भी स्लीवलेस कपड़े पहनने के बारे 4 बार सोचती हूँ कि नहीं यार थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बट नाउ पीपल टेल मी नहीं यार पागल है क्या, अच्छा तो लग रहा है। तुमने अपने दिमाग में वो बिठा लिया है कि नाउ जब व्हेन यू हैव लॉस्ट सो मच इट्स लुकिंग गुड ऑन यू। तो वो कॉम्प्लीमेंट मिलना कि आप कुछ भी पहन के जा रहे हो, पीपल आर सेइंग कि इट्स लुकिंग गुड ऑन यू, यू लुक फिट। द बेस्ट पार्ट इज यू लुक फिट, आप अच्छे लग रहे हो, आप एक अपीयरेंस है आपका जो कि लोगों को कैच कर रहा है। तो वो चीज़ें हैं, पीपल आर रीचिंग आउट टू यू कि यार क्या किया तुमने, व्हाट डिड यू डू, व्हाट केप्ट यू गोइंग ऑन, इतना वेट लूज करा, टाइम लगा होगा, वो मोटिवेशन कैसे आया। मतलब देयर आर स्टिल माई वेरी क्लोज कलीग्स हु आस्क मी डेली, मतलब वो 2-3 दिन पे एक बार वो कॉन्वर्सेशन आ ही जाता है कि तुझे ऐसा कब लगा कि मतलब वो मोटिवेशन कब आया कि यार अब ये रिजल्ट अब दिख रहा है। मैंने कहा मैंने एवरी टाइम आई टेल देम द सिंगल आंसर कि यार वो सिर्फ 15 डेज की कंसिस्टेंसी इज व्हाट यू नीड। इफ यू हैव शोन दैट 15 डेज का कंसिस्टेंसी, वो 15th डे से आपको स्केल में और इंचेस में वो डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। एंड दैट विल बी योर पॉइंट जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं यार चलो थोड़ा और करके देखते हैं, वापस तो नहीं जाना, वापस नहीं जाना। हाँ, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। उसका रीज़न ये होता है ना कि हमने अभी तक शायद उतने कंसिस्टेंसी के साथ रिजल्ट्स देखे नहीं होते, तो हमें सेल्फ डाउट्स भी होते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगी यार, 1 हफ्ता 2 हफ्ता कर लिया, और सबसे बड़ी बात खुद से कोशिशें कर ली। ठीक है, तो खुद से कोशिश में तो वैसे ही आप, ये भी होता है कि 2 हफ्ते डाइट भी होगी, वर्कआउट भी हो जाएगा, एक दिन छूटेगा जिम, एक दिन डाइट छूटेगी, एक दिन कुछ बाहर का खा लेंगे, और फिर वहाँ से करते 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 बैक टू स्क्वायर वन। तो जो 2 हफ्ते के एफर्ट्स थे वो भी पानी में चले जाते हैं। तो वो कंसिस्टेंसी कभी नहीं बन पाती, और ये सच्चाई है। मतलब मानो या ना मानो, दिस इज द बिटर ट्रुथ, दिस इज द अगली रियलिटी, दिस हैज हैपेंड, दिस हैज ऑलवेज हैपेंड, एंड दिस विल कीप ऑन हैपनिंग। If you want to change, you will have to bring some changes in the actions that you have been taking, because अगर आप वही करते आओगे, वही करोगे जो करते आ रहे हो, तो वही होगा जो होता आ रहा है। Nothing will change. If you want to change something, change your actions. अगर अपनी ये कमांड, अगर आप कोई कोच लाइक जिस पे भी आपको ट्रस्ट है, अगर आप किसी और को, और स्पेशली किसी एक्सपर्ट को अगर आप हायर करते हो या उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, एंड देन व्हाट यू डिड विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक इट सीरियसली, लाइक टेक द जर्नी वेरी वेरी सीरियसली, तो ही रिजल्ट्स दिखेंगे। एंड देन वही कंसिस्टेंसी के साथ 1 हफ्ता कंसिस्टेंटली किया, 2nd वीक किया, फिर वो जो रिजल्ट आया वो वेइंग स्केल पे देख के, वो मेजरिंग टेप पे डिफरेंस देख के लगा यार दिस इज वर्किंग ऑन मी, राइट, यू नो आई कैन डू इट। वो फर्स्ट रे ऑफ होप वहाँ दिखती है कि यार आई एम एबल टू डू इट, लाइक वो छोटी सी जो खुशी मिलती है ना, लगता है कि अच्छा हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स अगर मैं इसे कंटिन्यू करूं तो आई कैन सी द रिजल्ट। एग्जैक्टली, अगर मैंने इतना किया उसमें मुझे ये रिजल्ट मिला, तो मैं इतना करूंगी तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। सो यू नो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट विजुअलाइजिंग
यार 1 महीने बाद तो मेरा हो जाएगा 5 किलो कम, यू नो मैंने बाकियों की स्टोरीज भी सुनी है ऐसे, तो उससे बियॉन्ड भी नहीं सोच पाते हो, मतलब तब भी ऐसा नहीं होता कि 15 किलो लूज हो जाएगा, ये होता कि हाँ 5 किलो तो हो जाएगा यार, 5 ही किलो हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। देन आफ्टर अ मंथ जब वो सच में हो जाता है, वही अभी अनबिलीवेबल लग रहा होता है, और फिर लगता है, फिर देन दैट इज द टाइम व्हेन योर मोटिवेशन इज नेक्स्ट लेवल, दैट इज द टाइम देयर इज नो लुकिंग बैक, nobody can stop you, and then फिर आपको होता है कि अब तो मुझे ये करना ही है, and I think that's exactly what you did, right? Everything was covered by मतलब प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, सब कुछ फूड के थ्रू ही कवर्ड था, कोई सप्लीमेंट्स नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऑब्वियसली मतलब अब जैसे ACV आई डोंट कंसिडर इट एज अ सप्लीमेंट, वो तो मतलब आपका पार्ट है, एक मतलब जर्नी का पार्ट कह लो आप, फूड का फूड, हाँ, तो इट्स नॉट आई मतलब ऐसा सप्लीमेंट कि मैं आपको इसके साथ ये भी लेना है या ये कर लो या आप ये विटामिन ले लो या ऐसा कुछ ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं था। और थ्रू आउट दिस बिकॉज द फूड वॉज मेजर्ड, कभी ऐसा लगा कि वीकनेस या बॉडी नहीं, एज आई सेड कि उतना खाना भी मेरे लिए टू मच था, तो वो वीकनेस मुझे कभी नहीं लगी, क्योंकि मैं मतलब बिना रियलाइज किए भी मतलब जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पेट भरा हुआ है, तो आई न्यू कि आई हैव टू लिमिट माई सेल्फ, पर वो वीकनेस वाला, क्योंकि वो कभी ऐसा नहीं था ना कि आप कोई पर्टिकुलर चीज को एकदम इग्नोर कर दे रहे हो, कोई फूड कैटेगरी है ही नहीं, आपको रोटी भी मिल रही है, आपको चावल भी मिल रहा है, आपको फ्रूट्स भी मिल रहे हैं, आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, तो सब कुछ है, इट्स अ होल मील, इनफैक्ट बैलेंस्ड है, राइट। और इसका एक और रीजन है कि क्यों वीकनेस फील नहीं होती अगर आप ठीक डाइट कर रहे हो, तो उसका रीजन ये है कि ऑल्दो हम खाना कम खा रहे हैं, अदरवाइज हम कैलोरीज ज्यादा लेते हैं, यहाँ पर हम कैलोरीज कम ले रहे हैं तब भी हम ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। करेक्ट। उसका रीजन ये है कि पहले जो हम खाना खाते हैं वो होता है हाई इन फैट, हाई इन कैलोरीज होता है, बट न्यूट्रिएंट डेंस नहीं होता। अब जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारा सैलेड होता है, फ्रूट्स का पोर्शन होता है, अलग अलग तरह के नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, तो विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स इस तरह के खाने में ज़्यादा है, तो कम खा के भी आपको न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा मिल रही है। या फिर अगर आप डाइट नहीं कर रहे हो या हेल्दी खाना नहीं खा रहे हो तो ज़्यादा खाकर भी आपको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, विच इज़ वाई यू स्टिल फील बेटर, इनफैक्ट योर स्किन, योर हेयर, एवरीथिंग गेट्स बेटर while you eat lesser. Yeah, that's very interesting, right? Skin also I would say मतलब touchwood I have been blessed with a good skin nice. हमेशा से, but still मतलब I can feel those changes within myself, मतलब थोड़ा सा up to some extent I would say hair fall, skin का जो एक हाइड्रेशन लगता है स्किन पे, वो डलनेस नहीं लगती है फेस पे, वो सारी चीज़ें कुछ हद तक मुझे डेफिनेटली दिखाई दी विद द डाइट आई हैड, विद द चेंजेस आई मेड, मतलब वो रूटीन का जो आपका चेंज हुआ, जो आपकी हैबिट्स में आप चेंज लेके आए, तो वो ऑब्वियसली वो आपके विदिन ही आपको इफेक्ट कर रहा है इन अ पॉजिटिव मैनर। अच्छा, यू ऑल्सो टोल्ड मी दैट योर इम्यूनिटी वाज लो। यस। सो अभी कैसा है आफ्टर डाइट, लाइक नाउ दैट स्टिल यू आर फॉलोइंग अ वेरी हेल्दी रूटीन, सो अभी इम्यूनिटी में कुछ आपको डिफरेंस फील हुआ? हाँ, नाउ मतलब शायद जो मैं हर महीने ही बीमार पड़ जाती थी वो आई थिंक हैज़ मूव्ड कि अब मैं शायद 3 महीने पे एक बार कभी कुछ फ्लू हो गया या कुछ ऐसे। आई हैड लो बीपी इश्यूज पहले, तो उसमें मतलब ऐसा होता था कि हर कोई मुझे बोलता था 15 दिन हो गया तुम्हारा बीपी लो नहीं हुआ, क्या हो गया भाई, सब सही है। सो ऐसा सीन था कि मतलब हर 15 दिन पे एक बार तो बीपी लो होना है, वो वीकनेस फील होना। नाउ हैपेंस क्योंकि वो एक मतलब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, लेकिन अभी भी अब ऐसा इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता है। सो ऑब्वियसली मतलब आई हैव सीन चेंजेस, माय बैक पेन, माय नी पेन, एवरीथिंग हैज़ गॉन। आई फील मच मोर लाइट, बहुत एक्टिव, मतलब अब मुझे वो लेथार्जिक नहीं फील होता है। तो वो एक्टिवनेस आ गई है कि अब कोई कुछ भी बोले, पहले तो यार चलना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा, नाउ कि आई कैन, मतलब आई हैव गॉट दिस कॉन्फिडेंस बाय शेडिंग द वेट। जो आपने बोला कि अब आपको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। सो दैट इज व्हाट आई डेफिनेटली फील गुड अबाउट माई सेल्फ, how I am right now, the confidence I have, the appearance I have,
when people reach out to me and ask for suggestions, they compliment me that what you have done is actually very inspiring. I can be an inspiration for others, that I am being helpful in some way. Maybe I can help them in some way कि मतलब चलो मुझे देख के क्या पता उन्हें कुछ ऐसा फील हो कि वो भी कर सकते हैं. Exactly. देख के नहीं, आज तो बहुत सारे लोग सुन के जो आपको इंस्पायर होने वाले हैं. प्रियांशी, आपकी जर्नी से अब कितनी थाउजेंड्स ऑफ और जर्नीज होनी है, कितनी और लोगों ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है. यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट. लाइक हाउ मेनी लाइव्स यू आर गोइंग टू चेंज जस्ट बिकॉज ऑफ यू. You have no idea, and I would say this is the best way to give back to society. Yes. This is the best way to, contribute. अगर हमने कुछ पाया है तो हम शायद हमारी डेली की इतनी फास्ट एंड बिजी लाइफ में हमारे पास टाइम नहीं होता होगा कि हम कुछ सोसाइटी के लिए कर सकें. बट दिस वे स्पेशली, एंड गाइज, प्रियांशी हैज स्पेशली केम फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली फॉर दिस पॉडकास्ट, एंड आई रियली अप्रिशिएट, वैल्यू एंड थैंक यू फॉर ऑल दिस टाइम. इट मीन्स अ लॉट. और सिर्फ इंटेंट पर्पस ना इससे उन्होंने कुछ कमाया है, ना इस कॉन्वर्जेशन से मैंने कुछ कमाया है. इससे सिर्फ और सिर्फ इंटेंट ये था कि हम किसी तरह आप लोगों को इंस्पायर कर सके, आप लोगों को डायरेक्शन दे सके. बिकॉज बहुत सारे लोगों के माइंड में ना डाउट्स होते हैं कि हम नहीं कर सकते, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा. वी होप कि शायद इस कॉन्वर्जेशन के बाद आपको एक लाइट मिली होगी, एक कॉन्फिडेंस मिला होगा, और वही एजेंडा था. एंड बहुत अच्छे से आपने पूरी ये स्टोरी, पूरी जर्नी सुनाई. थैंक यू सो मच. आई वुड जस्ट लाइक यू टू से, खुद से आई एम वाओ मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ. डेफिनेटली आई एम वाओ. यू आर अ स्टार प्रियांशी. थैंक यू सो मच.